कल मोदी जी ने कहा था और आज निर्मला जी ने कर दिखाया। मिडिल क्लास पर देवी लक्ष्मी की कृपा बरसे, ये मोदी जी ने कहा था और निर्मला जी ने इसका इंतजाम भी कर दिया। जो महीने में 1 लाख तक कमाता है उसको इनकम टैक्स नहीं देना होगा, कुछ भी नहीं। उससे ज्यादा कमाने वालों के लिए भी इनकम टैक्स में 25,000 से लेकर 1,10,000 रुपए तक की छूट बचत का प्रावधान किया गया है। विद्वानों की राय है इस बार के बजट में कंज्यूमर के लिए एक संदेश है कि खर्च करो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 लाख करोड़ के खर्च के साथ इकोनॉमी की बुनियाद पर बजट का फोकस कायम है। वित्तीय घाटे का लक्ष्य 4.4% रखा गया है। विदेशी निवेश, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर AI तक को बजट के जरिए पुश मिलेगा। खेती किसानी को लाभकारी रखने और देश की जरूरत के हिसाब से ढालने के लिए कई योजनाएं लाई गई हैं। कैंसर की दवाएं, लिथियम आयन बैटरी और मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते किए गए हैं। कुल मिलाकर सीतारमण ने सबको खुश करने की कोशिश की है, लेकिन हाइलाइट्स तो वित्त मंत्री के इनकम टैक्स प्रपोजल ही रहे। The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. रिलीफ इनकम टैक्स के फ्रंट पे सब कह रहे थे कुछ होगा नहीं होगा तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करके चले। टैक्स के मोर्चे पे कंजम्पशन बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स में कुछ राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है, चाहे स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा करके हो या फिर 20 से 30% वाले स्लैब में बढ़ोतरी करके बदलाव करके हो। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. तो सरकार ने बजट में फिजिकल डिसिप्लिन भी दिखाया है। वित्त मंत्री ने FY25 के लिए वित्तीय घाटे का लक्ष्य 4.8% रखा है, जबकि FY26 के लिए ये टारगेट 4.4% का है। हालांकि कैपेक्स के मोर्चे पर सरकार धीमी पड़ती दिख रही है। सरकार ने इस साल के लिए कैपेक्स टारगेट घटा दिया है, जबकि FY26 के लिए इसमें मामूली सी बढ़ोतरी की गई है।
The investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. The details are given in Annexure D. To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat. And for well-run exporter MSMEs, for term loans up to 20 crore rupees. Also for the micro enterprises, we will introduce customized credit cards with a 5 lakh rupee limit for micro enterprises registered on Udyam portal. In the first year, 10 lakh such cards will be issued. वित्त मंत्री ने क्लीन एनर्जी पर भी बड़े ऐलान किए हैं। इसमें न्यूक्लियर एनर्जी मिशन शामिल है, जिसके तहत 2047 तक 100 गीगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य है। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाई जाएगी और R&D को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए अभी 20,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। सरकार ने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का ऐलान किया है। इसमें ईवी बैटरी, विंड टरबाइन, क्लीन टेक, खिलौनों पर खास फोकस रहेगा। टॉय मैन्युफैक्चरिंग के लिए राष्ट्रीय मिशन का ऐलान किया गया है। घरेलू इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सस्ता कर्ज भी दिया जाएगा। कैंसर मरीजों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि अगले वित्त वर्ष में देश भर में 200 कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ेंगी। 36 जरूरी दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटेगी और बाकी पर सिर्फ 5% ड्यूटी लगेगी। और बजट में बिहार के लिए बहार देखने को मिली है। इसी साल बिहार में चुनाव है। ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि बिहार के लिए बजट में आधा दर्जन योजनाएं सुनने को मिली। इनमें एयरपोर्ट्स, IIT पटना का विस्तार, सिंचाई योजनाएं, मखाना बोर्ड और फूड प्रोसेसिंग संस्थान शामिल हैं। Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. इधर प्रधानमंत्री मोदी ने बजट को मिडिल क्लास के सपनों का पूरा करने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट लोगों की झोली भरने वाला है और देश की तरक्की के लिए बड़ी नींव बजट में रखी गई है। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। यह बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। यह बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी बजट को शानदार बताया है। पुरी से बात की संवाददाता दीपाली ने।
और सर, सबकी नजरें टिकी थी बजट पर जो आखिरकार पेश हो चुका है, खास तौर पर महिला, किसान, युवा और ओवरऑल जो 10 बड़े पहलू बताए गए हैं, विकसित भारत की पूरी परिभाषा इसमें साबित की गई है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, बहुत शानदार बजट है और जो हमारी यात्रा है 2047 विकसित भारत का के जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसमें इसका बहुत ही कंट्रीब्यूशन होगा इस बजट के लिए। इस बजट को सिर्फ देखना कि सिर्फ महिलाओं के लिए या सिर्फ किसानों के लिए या सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, देयर इज अ फील गुड इन दिस बजट फॉर एवरीबॉडी। अब देखिए अब जैसे हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ज्यादा जो बढ़ता है, पिछले कई सालों से 30% कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ी आ रहा है, वो भी बढ़ा है। पर उसके साथ साथ जो मिडिल क्लास लोग, कई लोगों का कहना था, खास करके जो विपक्ष के हमारे मित्र लोग हैं, वो कह रहे जी मिडिल क्लास क्यों नहीं। अब देखिए, इन्होंने आज माननीय प्रधानमंत्री जी की इंस्पिरेशन है कि 7 लाख से 12 लाख, ठीक है, एग्जेम्पशन लिमिट होगी। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय 2.5 लाख थी, उसको हमने 5 गुना कर दिया। पर उसके अलावा देखिए ओवरऑल टैक्सेशन रेट क्या है। मुझे याद है 1974 में जब मैंने पहली नौकरी की दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में मैं पढ़ाता था, तो मेरी बेसिक सैलरी 400 रुपए थी। जब मैंने आईएएस का इम्तिहान दिया, फॉरेन सर्विस में आया, तब भी 400 रुपए थी। पे कमीशन के बाद वो 700 रुपए हुई। उस समय कितना मैक्सिमम टैक्सेशन रेट था इंदिरा जी के समय? 97%। वो हमने हाफ कर दिया, हाफ से कम कर दिया। और अभी जो आज मिला है, देखिए 12 लाख से आमदनी, मतलब 1 लाख रुपया महीने अगर आपकी इनकम हो तो कोई टैक्स नहीं है। बट उसके अलावा 24 लाख भी हो तो कितना कम टैक्सेशन रेट है। तो ये एक ओवरऑल, मैं तो कहता हूं एक किस्म के रेवोल्यूशनरी चेंज है। आप अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, हम 5वें स्थान से विश्व भर में 3रे स्थान पर अर्थव्यवस्था जा रही है। जो आत्मनिर्भरता और विकसित भारत की जो यात्रा है, उसमें हम बहुत तेजी से चल रहे हैं। तो इसको मुझे लगता है पूरा बजट की जो समझ है, उसमें क्या क्या नहीं हुआ, शिपिंग सेक्टर के लिए, एटॉमिक एनर्जी, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, कैंसर पेशेंट्स के लिए ड्रग्स को बेसिक कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्प्ट करना, तो ये इसको सोक इन करने के लिए समय लगेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बजट को गेम चेंजर बताया है। और आज के इस बजट में 12 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर जीरो टैक्स का जो अनाउंसमेंट माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय वित्त मंत्री जी को कि इतनी बड़ी मिडिल क्लास को सौगात दी है आपने कि पूरे देश भर में खुशी की लहर है। आप देखिए, ये बजट एक ड्रीम बजट है। इस बजट में हर चीज को एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लिया गया है। जो इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम 11 लाख 20 हजार करोड़ का, दैट इज इंटैक्ट, दैट इज स्टडी। सेकेंड, मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत बड़ा फोकस है। थर्ड, एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी पे बहुत बड़ा फोकस है। फोर्थ, टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो एक तरीके से जितने भी सेक्टर्स हैं उन सब पे ध्यान दिया गया और साइमल्टेनियसली टैक्स की रिलीफ देना और फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में लाना। इट्स एन अमेजिंग टास्क, इट्स अ फैबुलस बजट, अमेजिंग बजट। आई वुड से hats off to Honorable Finance Minister and Honorable Prime Minister for really bringing this kind of budget. ऑल राइट सर, रेलवे के हिसाब से देखें तो मुझे याद है जब पहला टर्म था मोदी सरकार का, तो प्रधान और बजट के दिन बाजार का क्या हाल चाल रहा? बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला और इसी उतार चढ़ाव के बीच बाजार की क्लोजिंग फ्लैट हुई। सेंसेक्स निफ्टी नीचे से सुधरकर बंद हुए। सेंसेक्स 5 पॉइंट चढ़कर 77,506 पर और निफ्टी 26 पॉइंट गिरकर 23,482 पर बंद हुआ है। आज के बाजार में कंजम्पशन से जुड़े शेयरों में शानदार तेजी रही। एफएमसीजी, रियल्टी, ऑटो शेयरों में अच्छी तेजी दिखी। पीएससी, एनर्जी, तेल गैस शेयरों पर दबाव रहा और सबसे ज्यादा गिरावट आईटी, मेटल, इंफ्रा इंडेक्स में देखने को मिली। ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने भी कदम उठाने चाहिए, ऐसा कहना है एमओएफएसएल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल का। साथ ही रामदेव अग्रवाल ने भी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को काफी अहम बताया है। आरबीआई क्या करता है, जो मूड है, जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने बोला, तो जो प्राइम मिनिस्टर जी ने बोले उनसे ये एक समझ में आ रहा है कि
इनको जो विकसित भारत है या जो लार्जर ग्रोथ ऑब्जेक्टिव है, कम वॉट में दे विल पुश द इकोनॉमी टू 7%, 7.5% काइंड ऑफ ग्रोथ, क्योंकि वो ग्रोथ नहीं आया तो बहुत कुछ लफड़ा होगा, इन द सेंस दैट टैक्स कलेक्शन नहीं आएगा या और भी दूसरे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो क्लियरली दे इवन एट लिटिल कॉस्ट दे विल पुश द ग्रोथ। अब उसके लिए सबसे बड़ा चीज़ मेरे ख्याल से अपार्ट फ्रॉम फिस्कल, अभी क्या मॉनेटरी के ऊपर बहुत है, जो आरबीआई से आएगा अगले बजट मीटिंग में, या जो क्रेडिट फ्लो है जो इकोनॉमी में ऑलमोस्ट बहुत कम हो गया, 15% से घट के 10 हो गया है, वो मेरे ख्याल से अगले महीना 15 में समझ में आएगा विच वे द विंड इज ब्लोइंग। थोड़ा सा टर्न अराउंड तो था ही रूरल कंजम्पशन में, सभी लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा सा परकअप है, और उसके ऊपर से अभी अर्बन के लिए भी थोड़ा सा बूस्टर आ गया है। तो वैसे ही होता है, मतलब बहुत ख़राब था, फिर थोड़ा अच्छा होगा, फिर और अच्छा होगा, फिर और बूस्टर मिलेगा। तो अभी तो ये साइकिल है ना, 2-3 साल तो चलेगा ना ये। अभी कंजम्पशन इतने दिन से पिटाई हुई है, अब थोड़ा तो इनके भी अच्छे दिन आएंगे ना। टाटा केमिकल्स के एमडी एंड सीईओ आर मुकुंदन ने कहा है कि इस बार वित्त मंत्री ने अपने 3 बड़े लक्ष्यों को पूरा किया है। वहीं देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के एमडी विनोद शर्मा ने कहा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पर लिए गए फैसले का पॉजिटिव असर इकोनॉमी पर देखने को मिलेगा। तीनों को उन्होंने पूरा किया जी। पहला तो अब देखेंगे कंजम्पशन के बारे में, जो टैक्स स्लैब आपने बात किया वो तो क्लियर है, 1.5 करोड़ फोरगॉन रेवेन्यू विच इज़ हैंड्स ऑफ पीपल। सेकंड जो बजट में बात की है उन्होंने एक जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की, रोज़गार बढ़ाने की बात की है। जो चीज़ उन्होंने किया है कि फर्स्ट तो एग्रीकल्चर, 40% रोजगार इस देश का एग्रीकल्चर में है। मैन्युफैक्चरिंग में बिगेस्ट रोजगार जो है एमएसएमई में है, वो दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर उन्होंने जो पढ़ा हुआ एक्सपोर्ट, जो हाई क्वालिटी रोजगार है, हाई पेइंग रोजगार है, वो एक्सपोर्ट में है। तो वेरी क्लियरली दिस बजट ऑल्सो फोकस्ड ऑन जॉब्स। तीसरी बात उन्होंने जो की है फिस्कल कंसोलिडेशन, डेफिसिट ना बढ़े, 4.8 से 4.4% तक नेक्स्ट ईयर का टारगेट। सो दीज 3 थिंग्स दे हैव डन। ये मैडम का 8वां बजट था, तो पहले तो मैं ये नहीं मानता कि कोई भी नुकसान होगा सरकार को। अब वो उतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि जो 1 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्सेस में और कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो दिया गया है वो रिलीफ वापस इकोनॉमी में आने वाली है। मैन्युफैक्चरिंग के जरिए लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे इकोनॉमी के जरिए उस मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट आएगा और उस एम्प्लॉयमेंट का फिर एक्सपोर्ट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो ये एक वर्चुअल साइकिल को किक स्टार्ट किया गया है। जो लास्ट में बात कही मैडम ने बजट में, ये जो टैक्स रिलीफ की, वो मेरे ख्याल से सभी चीज़ों को ट्रिगर करता है और एक बहुत पॉजिटिव रूप देता है। और बजट पर अपनी राय देते हुए आईटीसी के एमडी संजीव पुरी ने कहा है कि ये बजट इंक्लूसिव और सस्टेनेबल है। हाँ, इट्स वेरी क्लियरली ये एक इंक्लूसिव और सस्टेनेबल बजट है। इसमें जो पहले के बजट्स में जो फिलॉसफी रही है वो सेम फिलॉसफी पे बिल्ड कर रही है। और इसके अंदर वी हैव सीन दैट जो सेक्टर्स जिसमें लेबर इंटेंसिटी ज़्यादा है और जिस सेक्टर्स में काफ़ी लोग एम्प्लॉयड हैं, उन सेक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया है और इसकी ज़रूरत भी है। बिकॉज विकसित भारत के लिए, जैसे इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि 8 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने हैं, तो उसके जो पिलर्स आइडेंटिफाई किए हैं एग्रीकल्चर के, एमएसएमई के, एक्सपोर्ट्स के, ये सेक्टर्स हैं। फुटवेयर है, उसमें टॉयज़ है, फिशिंग है, जीसीसीज पे है, स्टार्टअप्स पे है। ये सेक्टर्स हैं जो कि काफ़ी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। तो टारगेटेड फोकस्ड अप्रोच इन सेक्टर्स का, आई थिंक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। रसना ग्रुप के चेयरमैन पीरूज खंबाटा ने कहा है कि इनकम टैक्स से मिडिल क्लास को जो राहत मिली है उससे माहौल पॉजिटिव बनेगा और इससे ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा। इम्पोर्टेंस ये है कि आज जो सैलरी जो ये लेवल में होता है सबसे ऑनेस्ट टैक्स पेयर होता है। वो तो ना डिडक्शन ले सकता है, ना कुछ यहाँ वहाँ खर्चा डाल सकता है। तो आज उसको बड़ा टैक्स देना एक गलत चीज़ थी। और 12 लाख आज कुछ बड़ी अमाउंट नहीं है। तो ये 12 लाख देना एक सही मूव है। क्या बोलते थॉट मूव है। थोड़ा लास्ट ईयर भी आ सकता था, पर अभी मेरे हिसाब से फ़ायदा ये होगा कि अभी जो एक सेंटिमेंट चल रहा था नेगेटिविज्म का, वो थोड़ा पॉजिटिव होगा। ये कैटलिस्ट बनेगा ग्रोथ का। अगर हर आदमी के पास थोड़ा पैसा आएगा तो कोई अच्छा हेयर ऑयल खरीदेगा, कोई अच्छा साबुन खरीदेगा, कोई रसना तो सॉफ्ट ड्रिंक अच्छा खरीद लेगा। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल इकोनॉमी में थ्रस्ट आएगा। पर मैं खाली इसको, ये बजट को खाली ये इसी दूरबीन से नहीं देखना चाहता हूँ, बिकॉज बाकी बहुत से अच्छे अनाउंसमेंट हुए।
सबसे बड़ा अच्छा अनाउंसमेंट ये है जो मेरे हिसाब से है कि ये सब टैक्स रियायतें के बाद भी फिस्कल डेफिसिट को सेम रखा हुआ है। आज ग्रोथ करना इंपॉर्टेंट है, इतना ही फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखना इंपॉर्टेंट है। आज आदमी मरेगा खाली टैक्स से नहीं, इन्फ्लेशन से मरेगा। अगर इन्फ्लेशन का कंट्रोल में नहीं रहा तो अगर डेफिसिट कंट्रोल में है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। तो इसीलिए मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव न्यूज़ है। अब ये पूरी पैकेज की बात करते हैं। अब एक स्टार्टअप को देख लेते हैं। स्टार्टअप में बहुत से एग्जेम्पशन दिए, स्टार्टअप का टैक्स हॉलीडे को बढ़ा दिया है, स्टार्टअप के लिए वेंचर फंड किए गए। नंबर 2 बात करते हैं एग्रीकल्चर में। आज मखना बोर्ड एक निफ्टी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बनाया गया है, एक कुंडली में तो था ही, ये बिहार में बनेगा, पॉजिटिव स्टेप। मिशन, एक्सपोर्ट मिशन, अलग अलग फ्रूट्स को एक्सपोर्ट करे, पॉजिटिव। आज मैं कहता हूँ, हमेशा कहता आया हूँ, पिस्ताशियो और आलमंड फॉरेन और इंडिया को बेचते हमारे मखना वर्ल्ड ओवर जाएंगे, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और फार्मर को एआई और टेक्नोलॉजी के द्वारा अगर फार्मर को अगर उसका ईल्ड बढ़ाते हैं तो फायदा किसको पहुंचेगा? वापस आम आदमी को ही पहुंचेगा, बिकॉज रेट कम होंगे, दाम कम होंगे। तो फिलहाल बजट की बात में इतना ही, लेकिन सीएनबीसी आवाज पर बजट की बात लगातार जारी रहेगी। और क्या मिडिल क्लास इस बजट से खुश हो गया? इस पर देखिए बड़ी चर्चा आज आवाज अड्डा में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।